ఉంది అధ్యక్ష. ఇవాళ ఆర్టీసీ తన సొంతంగా అంత పెద్ద ఎత్తున మరి బస్సుల్ని మరి ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ని కానీ బ్యాటరీ బస్సులను కానీ కొనే స్తోమత లేదు. అందుకని మేము ఏం చేస్తూ ఉన్నాం, ప్రయోగాత్మకంగా మా సిటీ ఈడీ గారు ఒక బస్సుల్ని మరి ఉన్న బస్సునే బ్యాటరీలతో అమర్చి చేయడానికి దానికి కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ నడిపిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఒకవేళ అది సక్సెస్ అయితే మినీ బస్సెస్ని మేము అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మేము ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, రఘునందన్ రావు గారు అన్నట్టు ఈ బస్సులకు సంబంధించి అధ్యక్ష వారు సూచన అయితే చేశారు, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్ర రవాణా శాఖ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా మన సంస్థలకు రావటం లేదు అధ్యక్ష. గతంలో జేఎన్ఎన్యూఆర్ఎం పథకం కింద యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అనేక బస్సులు వచ్చాయి అధ్యక్ష. కనీసం సిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధించిన బస్సులు వచ్చాయి, ఒక్క బస్సు కూడా చేయలేదు అధ్యక్ష. కేవలం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 40 ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఆ 40 ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు మరి దానికి కొంత సబ్సిడీ బేసిస్ మీద ఇచ్చారు. వాటిని మేము మరి ఎయిర్పోర్ట్కి నడుపుతా ఉన్నాం. అదనంగా మేము కోరేది ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ పొల్యూషన్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం కొత్త బస్సులు చేయాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర కార్పొరేషన్లకి, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్లకి తప్పకుండా సబ్సిడీ బేసిస్ మీద లేదా మరి ఆర్థిక సహాయం అందజేసి బస్సుల్ని నడిపే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వం పాలసీలు అయితే చేస్తుంది అధ్యక్ష, మీరు తుక్కు చేయండి, 15 సంవత్సరాలకు తుక్కు చేయండి, 12 సంవత్సరాలకు తుక్కు చేయండి అని చెప్పి అంటారు. తుక్కు చేస్తాం అధ్యక్ష, కానీ కొత్త బస్సు కొనాలంటే తడిచి మోపడవుతుంది అధ్యక్ష. ఇవాళ రఘునందన్ రావు గారు చెప్పిన విషయంలో కూడా ఒకటి వాస్తవం లేదు అధ్యక్ష. మా బస్సుల్లో 75% బస్సులు 15 సంవత్సరాలు పైబడినాయి అని చెప్పి పాసింగ్ రిమార్క్ చేసి వెళ్ళిపోయారు, లేరు వారు. కానీ మా బస్సుల్లో కేవలం 3% బస్సులు మాత్రమే 15 సంవత్సరాలు పైబడినాయి అధ్యక్ష. మేము 12 లక్షల కిలోమీటర్లు దాటిన వాటిని మేము 15 సంవత్సరాలు దాటిన వాటిని మేము వాడడం అధ్యక్ష. వాటిని పక్కన పెడతాం, వాటిని కార్గో కోసం వాడుతున్నాం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఆ బస్సుల్ని కార్గో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, కార్గో అండ్ పార్సల్ సర్వీస్కి వాటికి వాడుకుంటా ఉన్నాం. ఏదైనా వారికి ఉన్న సమాచారం అది తప్పు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. అలాగే సీతక్క గారు ములుగులో బస్ స్టాండ్ అడిగారు అధ్యక్ష. సండ్ర వెంకటేశ్వర గారు కల్లూరులో బస్ స్టాండ్ అడిగారు అధ్యక్ష. బస్ స్టాండ్ ఆల్రెడీ వారికి ఉంది, దాన్ని ఇంకా వేరే ప్లేస్లో మరి R&B ప్లేస్లోకి మార్చమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. తప్పకుండా పరిశీలన చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మరి అలాగే చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు కూడా స్మాల్ బస్సెస్ని 20-25 సీటర్ని ప్రవేశపెట్టమని అడిగారు అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర మా అందరూ ఆర్టీసీ అధికారులందరూ మేమందరం కూర్చొని ఆ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా చేయాలో కూడా నిర్ణయించుకొని ప్రజలకి ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మరి అట్లనే అధ్యక్ష కట్ మోషన్లో అధ్యక్ష మరి బట్టి గారు అలాగే మిగతా 2-3 సభ్యులు అడిగారు అధ్యక్ష. కట్ మోషన్లు ఏమన్నారంటే అధ్యక్ష, మేము RC కార్డ్స్, తర్వాత DT కార్డ్స్ అంటే DL కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డ్స్, RC కార్డ్స్ మేము టైంలో ఇవ్వట్లేదు, మేము చాలా లేట్ చేస్తున్నామని చెప్పారు అధ్యక్ష. దానికి సమాధానంగా 10,63,405 RC కార్డ్స్ని, 7,14,000 మరి 72 డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డులని ఈ సంవత్సరంలో మేము ప్రింట్ చేసి మొత్తం 17,77,477 కార్డులని ప్రజలకు అందజేశామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ఆ విషయంలో కూడా ఎటువంటి మరి డిలే కూడా లేకుండా ప్రజలకి RC కార్డ్స్ మరి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డులు కూడా ఇస్తున్నామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, గౌరవ సభ్యులు ప్రతిపాదించిన కట్ మోషన్స్కి సంబంధించి నా రిప్లైలో అన్ని అంశాలను ప్రతిపాదించిన కట్ మోషన్స్ని విత్డ్రా చేసుకొని ఉపసంహరించుకొని దాన్ని ఆమోదించవలసిందిగా గౌరవ సభ్యులను కోరుతూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. I request the Minister for Home to give reply to the demands for grants, home administration. मैं इज़्ज़त-ए-आब स्पीकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर और कार्रवाइयों पर इज़हार ख्याल का मौका इनायत फरमाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई। क़याम तेलंगाना का मकसद रियासत की तरक्की और खुशहाली थी, जिसमें माशियत, गुर्बत का खात्मा, सेफ्टी और सिक्योरिटी की सहूलत आम करना था। इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे वज़ीर आला जनाब कल्वाकुंटा चंद्रशेखर राव साहब ने पिछले 6 सालों में बेहतरीन और नुमाया स्कीमात को अमल में लाया, जिसकी वजह से मुल्क भर में तेलंगाना रियासत को एक अलहदा शिनाख्त हासिल हुई। ये हमारी खुशनसीबी है कि तेलंगाना रियासत को KCR साहब जैसे दूरअंदेश, लायक
और सेकुलर लीडर नसीब हुए। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मुझे इंसान दो सियासतदान जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब के साथ काम करने का मौका नसीब हुआ। तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब, सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी रियासत की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। तेलंगाना रियासत मुल्क भर में एक तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली रियासत है, जिसका सेहरा इज़्ज़त आब वज़ीर आला जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब के सर जाता है। होम डिपार्टमेंट के तहत पुलिस महकमे और दीगर शोबे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। रिफॉर्मेटिव एंड पीपल फ्रेंडली प्रोग्राम्स मुसलसिल जारी है, जिसकी वजह से रियासत का नाम मुल्क भर में रोशन हो रहा है। क़याम तेलंगाना से पहले लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि अगर तेलंगाना का क़याम अमल में लाया जाया गया तो रियासत में लैंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, तशद्दुद पसंदी में इजाफा होगा और बहुत सारे मसाइल चैलेंजेस पैदा होंगे। मगर हमारे इज़्ज़त आब वज़ीर आला जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर साहब के लिए अपनी गैर मामूली ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए जदीद और अनोखी स्कीमात फलाह और बहबूद की बेहतरीन पॉलिसियों के तहत इस लोगों के नज़रिए को गलत साबित किया और रियासत की तरक्की दिलाते हुए मुल्क में एक अहम मुकाम दिलाया। किसी भी रियासत की तरीक़ा का दारोमदार वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर मुनहसर होता है। रियासत में अवाम की लाइफ और सिक्योरिटी अहमियत की हामिल होती है। इनमें अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस का रोल काफ़ी अहम होता है। किसी भी रियासत की मुकम्मल तरक्की और इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए रियासत में लैंड ऑर्डर की पाबंदी और रियासत में अमन और सुकून रहना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी रियासत आम जिंदगी, सरमायाकारी और सनतों के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड करार दी गई है। बहुत सारी कौमी, मल्टीनेशनल और बैनुल-अक़वामी कंपनियां ने हैदराबाद और तेलंगाना को दीगर मुकामात पर अपना सरमायाकारी की है। कोविड-19 की वजह से पुलिस के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर साबित हुआ। तेलंगाना पुलिस ने अंतिम कोशिश की, लॉकडाउन ऑर्डर्स को कानून के मुताबिक नाफिज किया। इस दौरान अहम त्योहारों को पुरअमन इनेकाद, ज़रूरी अशिया सामान की तकसीम, मेडिकल एंड हेल्थ, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद फराहम की। लाखों महाजिर मजदूरों को अपनी रियासतों को भेजने में इंतज़ामिया की मदद की। तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी पर मरकज़ी हुकूमत और दूसरी रियासतों की तरफ से हौसला अफजाई की गई है। इसके अलावा दूसरी रियासतों ने तेलंगाना के कई स्कीमात को अपनाया है। क़याम तेलंगाना के बाद रियासत में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव के सहूलत के लिए इज़्ज़त आब वज़ीर आला KCR साहब ने 10 डिस्ट्रिक्टों 33 डिस्ट्रिक्टों में तकसीम किया। साबिक़े में सारे तेलंगाना में 738 पुलिस स्टेशन थे। ऑनरेबल CM साहब ने उसमें 103 पुलिस स्टेशन, आज इस वक्त 841 पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। 29 सर्कल्स में 132 से बढ़ाकर 161 सर्कल बनाए गए। 24 नए DSP ऑफिस बनाए गए। साबिक़ा में इसकी तादाद 86 थी और आज 110 सब डिवीज़न काम कर रहे हैं। नए 7 पुलिस कमिश्नर बनाए गए, साबिक़ा में 2 थे। जिसे बढ़ाकर 9 किया गया। SP ऑफिसर्स कायम किए गए, जिसकी वजह से दिन ब दिन लैंड ऑर्डर में बहुत अच्छा कंट्रोल होता रहा। हमारे ऑफिसर्स भी बहुत अच्छी तरीके से आवाम की खिदमत करते रहे। पुलिस नाखुशगवार वाक़यात को रोकने और आवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। रियासत में सेंशनल केसेस को 24 घंटों के अंदर पता लगाकर मुलजिमीन को सज़ा के लिए सख्त कानून कार्रवाई की जा रही है।
औरतों और बच्चों पर जुल्म करने वाले मुजरिमीन के खिलाफ उम्र कैद की सजाए की कार्रवाई की गई है। पिछले 6 सालों में रियासत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहार और ऑफिशियल सेलिब्रेशन बगैर किसी हादिसात के पुरअमन तरीके से मनाए जा रहे हैं। इसी दौरान आए रमज़ान शरीफ, बकरीद, बोनाल, मुहर्रम, गणेश त्यौहार और जुलूसों को सिक्योरिटी बंदोबस्त को भी पुलिस महकमे ने पुरसुकून तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया। इस सिलसिले में तेलंगाना जितनी तारीफ की जाए कम है। तेलंगाना हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए कई इकदाम किए हैं। ख़ासतौर से PD एक्ट में सख्ती बरती गई। जो बार बार जुर्म करते हैं उन पर PD एक्ट नाफिज किया गया और हमारे फार्मर्स के लिए जो नकली बीज फरोख्त करते हैं किसी भी स्टेट से लाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें पर भी PD एक्ट बुक किया गया, क्योंकि नकली बीज की वजह से हमारे किसान परेशान होते हैं। इस एक्ट की अमलावरी ख़ासतौर से जो चेन स्नेचिंग साबिका में बहुत हुआ करते थे, बहुत से लोगों को जो अदर स्टेट से आते थे, महाराष्ट्र कर्नाटक से आकर रात रात यहाँ क्राइम कर कर भागते थे, मगर हमारी CCTV कैमरे मैक्सिमम लगाने की वजह से वो गिरफ्तार हुए। 2017 में 7 चैन स्नेचिंग हुए थे, 2018 में 427 और 2019 में 245 और 2020 में 132। अब इस नए साल में कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ अध्यक्ष। PD एक्ट के तहत 2018 में 394 केस बुक किए गए, 2019 में 487 केस बुक किए गए, 2020 में 401 केस बुक किए गए। इस साल जनवरी के महीने तक 51 केसेस बुक किए गए। अध्यक्ष, मैं यही बताना चाहता हूं, जो लोग बार बार जुर्म करते हैं पहले उन्हें कोई सख्ती नाफिज नहीं किया जाती थी, मगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने उन पर बहुत सख्ती नाफिज करते हुए PD एक्ट बुक करने की वजह से क्राइम में बहुत सी कमी हुई है। बाज़ जगह कुछ क्राइम ज़रूर हो रहे हैं, उसे भी हम ज़रूर सुधारेंगे, मगर पुलिस महकमा हमेशा बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पार्टी के, सभी के साथ एक साथ जो भी जुर्म करता है उसे ज़रूर गिरफ्तार किया जाता है, उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। अध्यक्ष, तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में CCTV प्रोजेक्ट को नाफिज किया। इसके तहत दर्ज मुकामात पर CCTV कैमरे लगाए गए। CCTV आवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा जराइम की रोकथाम, जराइम का सुराग लगाने और जांच पड़ताल करने में काम आता है। इसकी मदद से मुजरिमों की हरकत पर नजर रखी जाती है। कॉर्पोरेट्स एंड PSUs ने कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सिटी पुलिस कमिश्नरेट्स में CCTV कैमरे स्पॉन्स किए। नीलू सैतम प्रोग्राम के तहत तेलंगाना पुलिस ने शहर के शहरियों की उनकी हिफाजत के लिए अपने रिहायशी इलाकों में CCTV कैमरे लगाने की तरकीब दी और जो बहुत इससे फायदा पहुंचा है। अध्यक्ष, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक तेलंगाना में 66% केसेस CCTV कैमरों की मदद से पता लगाया जा रहा है। नेनू साइतम कम्युनिटी CCTV कैमरेज में खास तौर से अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने RTC में फंड लगाने की बात की, मगर हमारे CM साहब ने खास तौर से MPs, MLAs, MLC के फंड को पुलिस महकमे में फंड के जरिए 7,03,373 CCTV कैमरे नस्ब किए गए। 2019 पुलिस डेटा के मुताबिक मुल्क भर के जुमला CCTV कैमरों में सिर्फ तेलंगाना में 64% कैमरे मौजूद हैं। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एजेंसी सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड लेवल बेस्ड सिटीज में हैदराबाद को 16वां मुकाम हासिल है। हैदराबाद में 1000 लोगों के लिए 30 कैमरे मौजूद है। हैदराबाद में जुमला 3,60,000 कैमरेस है। साइबराबाद में 1,30,000 कैमरेस है। राचाकुंडा में 1,20,000 कैमरेस है। इससे सारे तीनों शहरों की बड़ी लोगों की आवाम की हिफाजत की जाती है। शहर हैदराबाद को CCTV निगरानी के लिए पूरे मुल्क में नेशनल स्कॉच सिल्वर मेडल मिला है। अध्यक्ष, तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत है जहां आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से
शहरियों को ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद, राचाकुंडा और आसपास के इलाके तेजी से फैल रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, दीगर बिजनेस, रिहायशी और तालीमी इदारे हैदराबाद, साइबराबाद, राचाकुंडा इसके आसपास इलाकों में आबाद है, जिसकी वजह से गाड़ियों की ट्रैफिक में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हम शहर में औसत ट्रैफिक नकल व हरकत की रफ्तार 19 किलोमीटर फी घंटे से बढ़ाकर 24.8 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा हुआ है। साबिका में जो ट्रैफिक की रफ्तार थी अध्यक्षा, उससे अभी इस वक्त साबिका में 1 आवर के अंदर हैदराबाद में 19 किलोमीटर फासला तय करते थे और आज ये 24.8 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। ये ओलो कैब्स सर्वे के मुताबिक, ओलो कैब वालों ने सर्वे किया, साबिका में भी सर्वे किया था, अभी सर्वे करने के बाद कहा कि ये सिग्नल की वजह से, ट्रैफिक कंट्रोल करने की वजह से बहुत वक्त बच रहा है और मंजिल तक हम आसानी से पहुंच रहे हैं। ये हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में बेहतरीन औसत है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को कम करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए। इस कदम से औसत रफ्तार में इजाफा हुआ। मुल्क भर में पहली मरतबा हैदराबाद, साइबराबाद, राचाकुंडा कैशलेस चालान सिस्टम शुरू किया गया। इस सिस्टम की वजह से ट्रैफिक स्टाफ को ट्रैफिक कंट्रोल करने, आवाम को ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने में मदद मिल रही। अध्यक्ष, आप लोग कहते हैं कि ट्रैफिक वाले चालान कर रहे हैं, जब तक हम चालान नहीं करेंगे कंट्रोल किस तरह कर सकते। अध्यक्ष, जब हमारे पास कोरोना में बाहर निकल रहे थे तो सिर्फ 100 रुपये जुर्माना किया जा रहा था, तो लोग उस पर आवाज़ उठा रहे थे कि पुलिस जुर्माना कर रही है। हमारे लिहाज दूसरे कंट्रीज के अंदर दुबई में 3000 रियाल जुर्माना किया जा रहा था। हमेशा यही कहते हैं कि आवाम को तकलीफ ना हो, मगर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, इस कोरोना का खात्मा करने के लिए पुलिस को भी कहीं ना कहीं सख्ती बरतना पड़ता है। अध्यक्ष, हैदराबाद ट्रैफिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ये नया और जदीद तरीन ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है। अध्यक्ष, इस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक डिमांड के मुताबिक सिग्नल्स टाइम खुद ब खुद बदलता है। अध्यक्ष, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो सिग्नल का टाइम बढ़ता है। अध्यक्ष, जैसा ट्रैफिक खत्म हुई ऑटोमेटिक सिग्नल दूसरों को मिल जाता है। अध्यक्ष, इससे काफ़ी टाइम ऐसा नहीं है कि 2 मिनट या 1 मिनट का लगा दिया गया तो 1 मिनट कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगर ट्रैफिक कम हो जाएगी तो 10 सेकंड 20 सेकंड में भी वो सिग्नल चेंज कर देगा। अध्यक्ष, जिससे वक्त बहुत बचेगा, लोग आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अध्यक्ष, इंटीग्रेटेड एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैफिक की रवानी, ट्रैफिक के बेहतरीन मुमकिन रोडिंग, ट्रैफिक जंक्शन सिग्नल्स को बेहतरीन बनाए जाने का एक मजमूई नज़ारा है। ITMS प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद को 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अध्यक्ष, जिसमें से 49.5 करोड़ रुपये खर्चा किए गए, जबकि साइबराबाद और राचाकुंडा को 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को, खासतौर से ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वालिदैन के साथ काउंसलिंग की जा रही है। अध्यक्ष, जो लोग गलती करते हैं और मासूम बच्चे भी कुछ गलती करते हैं तो उन्हें वहीं पनिशमेंट नहीं दिया जाता। अध्यक्ष, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पुलिस ये चाहती है कि आवाम अच्छी सुकून की ज़िंदगी गुजारे। पैसे लेने से, चालान करने से हुकूमत का ख़जाना नहीं भरेगा, क्योंकि हमारे CM साहब एक बड़े महात्मा हैं जिसका दिल बहुत बड़ा दिल है, जो लोगों की जो खिदमत करते हैं। लोग बदपीछियों की बेहिसाब तारीफ करते हैं। वो कभी भी यही नहीं चाहते कि ट्रैफिक, क्योंकि मेरा साहब ने भी कहा ट्रैफिक चालान करके पैसे वसूल के। जब तक हम किसी को चालान नहीं करेंगे तो डर कैसा रहेगा। लोग सुबह निकलते हैं बगैर हेलमेट के, ओल्ड सिटी से निकलते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। मैं देखता हूं जब नया पुल आता है तो नीचे से हेलमेट निकाल कर लगाते हैं। तो हेलमेट घर से पहन कर निकलना चाहिए। कैमरे में इसलिए उन्हें फ़ोटो ली जाती है ताकि वो दूसरी मरतबा ऐसी हरकत ना करें। उनको चालान जब घर पहुंचता है तो कहते हैं कि मैं गलती करा, उसको गलती को सुधारने के लिए चालान किया जाता, ना कि उन्हें माशी तरीके से कमज़ोर करने के लिए चालान किया जाता है। अध्यक्ष, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरेस दिए गए। अध्यक्ष, लोग समझते हैं कि कैमरा पुलिस वालों के हाथ में ही होता है या बस स्टैंड पे होता है या रोड पे होता है। पुलिस ऑफिसर के पास जो ड्यूटी पर होते हैं हमेशा कैमरा उनके साथ रहता है
वो सीक्रेट तरीके से रहता है ताकि कोई भी क्राइम करे तो दूर से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं अध्यक्ष। अक्सर बस स्टैंडों पे कहीं छेड़छाड़ होती है, पहले बहुत हुआ करता था। आज लैंड ऑर्डर हमारा इंडिया में अगर हैदराबाद का लैंड ऑर्डर या तेलंगाना का देखें तो नंबर 1 लैंड ऑर्डर हमारे पास का है, जो जिस तरीके से हमारे सीएम साहब की आरज़ू थी अध्यक्ष आप तो जानते हैं, आप मूवमेंट में कहाँ दिल्ली में हर जगह सीएम साहब रहते थे। जब सीएम साहब ने पार्लियामेंट के जितने नुमाइंदगी करने वाले पार्टीज थे, जब सबसे मिलते थे घर घर जाकर, उनके ऑफिसर्स जाकर, आप भी साथ रहते थे, जयशंकर साहब भी साथ रहते थे, तो लोग कहते थे कि तेलंगाना तो ले रहे हैं, आप लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल करेंगे। लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि आगे नक्सलिज्म है, यहाँ पर फिसादात बर्पा होते हैं। आप बताइए अध्यक्षा, तेलंगाना बनने के बाद कहीं भी एक फिसाद हुआ, एक छोटा मोटा भैंसे में हो रहा अध्यक्षा, जहाँ पर 144 लगाया गया था, मगर हमारे डीजी साहब ने बहुत उसका प्लान किया है और उसको पूरा हम कैमरे में लेकर एक कमांड एंड कंट्रोल वहाँ कायम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कभी भी भैंसा में भी छोटा सा फिसाद नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस को जो ट्रैफिक में काम करते हैं अध्यक्षा, चूंकि उन्हें धूप में काम करना पड़ता है, डस्ट में काम करना पड़ता है, उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया की जा रही है। उसके अलावा उन्हें एक पोल्यूशन अलाउंस 30% दिया जाता है। जो लोग ट्रैफिक में काम करना चाहते हैं वो अपने से अप्लाई भी करते हैं, तो उन्हें 30% इजाफा सैलरी दी जाती है, ताकि वो ज़्यादा पैसों से अपने लिए ज़िंदगी को खुशहाल बना सके। हैदराबाद पुलिस को मुल्क भर में रोड सेफ्टी एंड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया अध्यक्ष। ये किसी स्टेट को नहीं मिला, सिर्फ हैदराबाद स्टेट की ट्रैफिक पुलिस को ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड मैसर हुआ। उसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को और डीजीपी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रियासत में बेहतरीन मोबिलिटी एंड विजिबिलिटी के लिए पुलिस महकमे को जदीद व्हीकल्स की ज़रूरत थी अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश में जब तक हम थे, पुराने खटारा गाड़ियाँ हुआ करते थे, कभी कभी हम देखते थे पुलिस की गाड़ी खुद नहीं चलती थी, पुलिस वाले उसको धक्का देते रहते थे हर सारी देर के बाद, क्योंकि बैटरी उतर जाती थी, कई एक प्रॉब्लम में आ जाते थे। उसके लिए सीएम साहब ने हमारे 1 नहीं 2 नहीं 706 करोड़ रुपये नई गाड़ियों की खरीदी के लिए मंजूर किया अध्यक्षा 2014-15 में 206 करोड़ मंजूर किए गए, 2018-19 में 500 करोड़ मंजूर किए गए। इस तरह 15,533 नई गाड़ियां खरीदी गई, जो आज हर जगह हमें नजर आ रही है अध्यक्षा। 4 व्हीलर्स 4,549 है अध्यक्षा, अदर व्हीकल्स 911 है अध्यक्षा, मोटरसाइकिल 10,073 है अध्यक्षा। वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन और चाइल्ड सेफ्टी के लिए हुकूमत तेलंगाना रियासत में खवातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए पुरज़म है अध्यक्षा। अक्टूबर 2014 में पहली मरतबा हैदराबाद में शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया अध्यक्षा। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में शी टीम्स नहीं थी अध्यक्षा। सीएम साहब ने ख़ास तौर से औरतों के लेडीज़ के बारे में, वो जब भी बाहर निकलते हैं उनकी हिफाजत के लिए हम बहुत से कैमरे लगा रहे हैं, और उसके बाद भी ख़वातीन की खिदमत ख़वातीन ही कर सकते हैं अध्यक्ष। ख़वातीन के सामने जाकर अपना दुखड़ा रो सकते हैं, अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उससे उन्हें मदद ले सकते हैं अध्यक्षा। वो मर्द आदमी के सामने नहीं बोल सकते, इसलिए हमारे सीएम साहब ने शी टीम्स बनाई गई। आज 1-2 नहीं, 2015 से इसको पूरे तेलंगाना में कायम किया गया। फिलहाल रियासत में जुमला 331 शी टीम्स काम कर रहे हैं अध्यक्षा। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है अध्यक्षा। 331 शी टीम्स है, तो उनका पूरा अमले के साथ वो जो भी अपने कंप्लेन करते हैं वो शी टीम्स उसे सीक्रेट रखते हैं और काउंसलिंग करते हुए उनका मसला हल करने की कोशिश करते हैं अध्यक्षा। शी टीम का कॉन्सेप्ट मुल्क भर में काफ़ी मशहूर हुआ अध्यक्षा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में भी इसको अपनी अपनी रियासतों में अमल लावारी की कोशिश की जा रही है अध्यक्षा। बहुत से स्टेट्स के बहुत से टीम्स हमारे पास आए अध्यक्षा, आकर ये कहे कि शी टीम्स का हम एक जायज़ा लेना चाहते हैं। हमारे डीजीपी साहब महेंद्र डी साहब और होम सेक्रेटरी साहब ने उन लोगों को ले जाकर पूरी जगह बताया गया। वो देखने के बाद बोले कि अरे ये आप कैसा, आपके सीएम साहब के जहन में बात है कि आपके पास एक टीम होना चाहिए और भरोसा सेंटर होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। इसको हमारे स्टेट में भी हम लागू करें तो हमारे स्टेट की महिला यकीनन सेफ रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने ख़वातीन की हिफाजत के लिए एक अलहदा विंग, वुमेन सेफ्टी विंग को मार्च 2018 में कायम किया। शी टीम्स के बाद सीएम साहब ने वुमेन सेफ्टी विंग कायम किया अध्यक्षा 2018 में।
ये विंग खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। अक्टूबर 2014 से फरवरी 2021 तक शी टीम के तहत 32,487 कंप्लेंट रिसीव किए अध्यक्षा। जो लोग भरोसा सेंटर होता है अध्यक्षा, भरोसा किस पर होता है? औरतों को अपनी माँ पर भरोसा होता है, अपनी बहन पर भरोसा होता है, पर आज औरतों को पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा है अध्यक्षा। वो पुलिस शी टीम्स पर, जो शी टीम्स बनाई गई है पुलिस डिपार्टमेंट में, उन पर भरोसा है। वो अपनी राज की बात या अपने परेशानी की बात पुलिस डिपार्टमेंट उसी तरह राज में रखकर उनका मसला हल करते हैं अध्यक्षा। 32,487 कंप्लेंट आए थे अध्यक्षा। 10,494 पे एफआईआर और पेटी केसेस लगाए गए अध्यक्षा, और 20,396 को काउंसलिंग के लिए खत्म किया गया अध्यक्षा। और जो लोग नहीं सुन रहे थे उन्हें भी 10,494 को अरेस्ट करते हुए फिर भी उनको काउंसलिंग की गई, ताकि अदालतों में जाने पर उनकी ज़िंदगियों में बहुत रंजिशें आते हैं। हमारा पुलिस महकमा यही चाहता है कि अदालतों से वो मसला हल नहीं हो सकता, काउंसलिंग करेंगे, हम बैठेंगे, हमारी बहनों को समझाएंगे, अपने भाइयों को समझाएंगे, तो अच्छी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं अध्यक्षा। अध्यक्षा, इसके लिए 20,000 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किए गए अध्यक्षा। हर जगह, हर जहाँ पर भी हो सका, हमारे पुलिस ऑफिसर ने तो कुछ प्राइवेट लोगों को लेकर फैमिलीज काउंसलिंग के लिए बुलाकर उन लोगों में अवेयरनेस पैदा किया कि आप आपस में झड़े कोर्ट कचहरी जाने के बजाय आप हमारे पास आइए, हम ज़रूर आपके मसले को हल करते हुए आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की मौका फराहम करेंगे। हैदराबाद में मजलूम खवातीन, इनके बच्चों के लिए भरोसा सेंटर कायम किया गया है। भरोसा सेंटर में मजलूमों के लीगल एडवाइस, पर्सनल काउंसलिंग, मेडिकल सपोर्ट फराहम किया जा रहा है अध्यक्ष। भरोसा सेंटर को तेलंगाना के दीगर अजला में भी कायम किया गया है अध्यक्ष। हैदराबाद में 2016 में कायम किया गया था अध्यक्षा, विकाराबाद में जुलाई 2018 में, वरंगल में जून 2020, संगारेड्डी में सितंबर 2020, और अभी 3 दिन पहले अध्यक्षा ओल्ड सिटी में एक न्यू भरोसा सेंटर का फाउंडेशन रखा गया, जो जहरा नगर में है, और जिसकी कीमत 4,80,00,000 रुपए अध्यक्षा। ये सीएम साहब का नजरिया अध्यक्षा। ये खवातीन हमारी बहनें हैं, ये इधर उधर अदालतों के चक्रे आपस की झगड़ों में जाने के बजाय पुलिस के पास आए तो पुलिस उनके मसाइल को हल करते हुए उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम करने वाली कोई पुलिस है तो तेलंगाना की शी टीम्स और भरोसा सेंटर अध्यक्ष। और इसी के साथ साथ जो छोटे बच्चों के साथ अत्याचार होता है अध्यक्ष, इस प्रोग्राम के तहत 2015 से 2021 तक 39,876 बच्चों को बचाया गया अध्यक्ष, और इनमें 20,357 बच्चों को उनके वालिदैन को सौंपा गया अध्यक्ष, जबकि बकाया बच्चों को वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में रिहैबिलिटेशन होम्स के तहत आता है, उन्हीं में शामिल किया गया अध्यक्षा। और काफ़ी इस सर्वे के बाद पता चला है ये बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके माँ बाप को जब भी पता चलता है तो अपने बच्चों को आकर वहाँ से ले जाते हैं। अगर वो कोई नहीं सहारा नहीं है तो हुकूमत उनका मुकम्मल इंतजाम करता है। ये हमारे सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा अध्यक्ष। अध्यक्षा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पहले 50 से 60-70 दिन लगते थे अध्यक्षा, मगर तेलंगाना के क़याम के बाद अब इसको सिर्फ 3 से 4 दिन में इसका वेरिफिकेशन मुकम्मल किया जा रहा है अध्यक्ष। साबिक़ा में तत्काल में दाखिल करना पड़ता था, जब आपको 4-5 दिन में पासपोर्ट मिलता था। अब नॉर्मल वे में आप पासपोर्ट दाखिल करेंगे तो आपको 5-4 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा अध्यक्ष। ये किसी और स्टेट में नहीं है। इस कारनामे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से मुसलसिल 5 सालों से वेरी फास्ट वेरिफिकेशन अवार्ड हमारी तेलंगाना स्टेट को मिल रहा है अध्यक्षा। उसके लिए भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम एफएनसी निगाह एंड मॉनिटरिंग अध्यक्षा, पढ़ाने और कम वक्त में जिंदगियों को बचाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने 100 डायल और 112 डायल को मॉडर्नाइज किया अध्यक्षा। एक ही स्टेट है हिंदुस्तान में जहां पर आप जहां से भी सिटी में से अगर 100 डायल करते हैं अध्यक्षा, 4 मिनट से मैक्सिमम 5 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसलिए हम बार बार इसका अवेयरनेस ला रहे हैं अध्यक्षा। हम तमाम हमारी बहनों को बता रहे हैं, हमारे लड़कियों को बता रहे हैं,
जहां आपको जर्रा बराबर भी डाउट हो कि आपको कोई शक हो, किसी से डर हो, तो फौरन आप अपने फ़ोन पे 100 डायल कीजिए। पता बोलने की ज़रूरत है, वो पते पे खुद ब खुद पुलिस विद इन 5 मिनट्स में आ जाएगी। उनके लिए हमें बहुत बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगी। कुछ लोग फ़ोन ना करने की वजह से बाज़ वक़्त मुश्किलात में, उसके लिए हम बार बार पब्लिक के अंदर जहाँ तक सके अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि 100 डायल जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आप कीजिए। विद इन 5 मिनट्स के अंदर हमारी पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी और आपकी हिफाजत करेगी। इसी से हैदराबाद में हमेशा की तरह अब नहीं है अध्यक्षा, आजकल बहुत लैंड ऑर्डर कंट्रोल हो चुका है अध्यक्षा। लोगों में फ्रेंडली पुलिस का बहुत बड़ा असर हो सका अध्यक्षा। वो लोग पुलिस को अपनी एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। 2014 से तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 8 नोटिफिकेशन जारी किए अध्यक्षा। इन 8 नोटिफिकेशन के तहत पुलिस डिपार्टमेंट को SPF, फायर सर्विस, प्रिजन्स, महकमे में जुमला 30,580 पोस्ट नोटिफाइड किए गए हैं अध्यक्ष, जिसमें से 28,277 पोस्ट भर्ती की गई अध्यक्ष। 25,435 ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, जबकि बाकी अफराद की ट्रेनिंग जारी है। फिलहाल 1,175 SIs मसावी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए हद उम्र में 3 साल का इजाफा किया अध्यक्ष, क्योंकि साबिका में एज की लिमिट थी। लोगों का डिमांड हुआ कि एज लिमिट में हम नहीं आ सकते, तो CM साहब ने SIs की उम्र में 25 साल से 28 साल किया और कांस्टेबल की उम्र 22 से 25 साल की। अध्यक्षा, सारे हिंदुस्तान में महिला के बारे में कोई फिक्र करने वाले लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब अध्यक्ष। जब पुलिस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो रहा था अध्यक्षा, तो CM साहब ने कांस्टेबल के लिए 33% कोटा महिला को दिया अध्यक्षा। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। आज हर पुलिस स्टेशन में महिला नज़र आ रहे हैं। अभी और एक 20,000 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है अध्यक्षा। इसमें भी अपॉइंटमेंट होगा, तो हर पुलिस स्टेशन में कहीं पर भी आपको जहाँ भी महिला जाएंगे ज़रूर उनका इस्तेमाल करने के लिए महिला मौजूद रहेंगे। जेल डिपार्टमेंट में कई एक रिफॉर्मेटिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से इकदाम किए गए अध्यक्ष। मुल्क भर में तेलंगाना जेल रिजा, रिहाइश, मेडिकल सहूलत के लिए बेहतरीन माने जाते हैं अध्यक्ष। मुजरिमों की मुख्तलिफ शोबों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है अध्यक्ष, ताकि रिहाई के बाद वो खुद मुख्तफी बने। अगर जेल में कोई आदमी कुछ हुनर सीखना चाहता है अध्यक्षा, तो बराबर उसे जेल DGP उसे मुहैया करते हैं ताकि वो हुनर सीखे शौक़ के साथ। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे तालीम भी दी जाती है अध्यक्षा, और उसे एग्ज़ाम भी दिलाया जा सकता। ये हमारे जेल है। कुछ दिन पहले पंजाब के DG आए थे, जेल DG। उन्होंने जब हमारे जेल का दौरा किया तो आने के बाद मुझसे भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपके जेल में जो इंतजामात है, लोगों के बारे में जो हम सुनते हैं कि कैदियों को सज़ा दी जाती है, मगर आपकी जेल में तरबियत दी जाती है, ऐसा जेल हम हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे जो तेलंगाना में ख़ासतौर से चल्लापल्ली और चंचौड़ का जेल है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर से उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके। अध्यक्षा, हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स न्यू प्रिजन के लिए 1,22 लाख खर्च किए गए अध्यक्षा। महबूबनगर, करीमनगर और नई डिस्ट्रिक्ट जेलों की तामीर के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर है, जिसके लिए 125 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। सिद्दीपेट की सब जेल को डिस्ट्रिक्ट जेल में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। संगारेड्डी, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जेलों के सेंट्रल जेलों में अपग्रेड करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए 11.20 करोड़ का खर्चा होगा। अध्यक्षा, तमाम प्रिजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट जेल के अदालतों में वीडियो लिंकेज किया गया अध्यक्षा। हर जगह वीडियो लगे हैं। कुछ गलत करता है तो इमीडिएट अरेस्ट किया जा सकता है, उसे उस गलती से रोका जा सकता है। किसी भी स्टेट में जेल के तहत पेट्रोल पंप नहीं चलते अध्यक्षा। हमारी तेलंगाना स्टेट के जेल है अध्यक्षा, हम 6 साल के अंदर उनको डेवलप किया अध्यक्षा। आज 25 से ज़्यादा पेट्रोल पंप चल रहे हैं और इंडिया में नंबर 2 जो पंप चलने वाला, सबसे ज़्यादा सेल करने वाला पेट्रोल पंप है तो चंचौड़ा जेल का मलकपेट का पेट्रोल पंप इंडिया, और हमारी स्टेट में नंबर 1 पेट्रोल पंप है। चूँकि जितने बड़े कंपनी से वो लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंप्स जेल को देंगे ताकि उससे इनकम भी अच्छी हो सके, सेल भी अच्छा हो सके, क्योंकि लोगों को विश्वास है जेल के पेट्रोल पंप में कोई मिलावट नहीं होती है,
वहाँ अच्छा पेट्रोल मिलता है, अच्छा डीजल मिलता है, अच्छा ऑयल मिलता है, तो थोड़ा फासला तय कर कर भी आकर वहाँ से लेते हैं अध्यक्ष। इससे होता ही है अध्यक्ष, जो लोग कैदी है, जो सज़ा काट रहे हैं, उन्हें भी बाहर काम करने का मौका मिलता है अध्यक्ष। उनको हर महीना 5,100 रुपये उनकी तनख्वाह में जमा होते हैं अध्यक्ष। और जो जेल की सज़ा काट चुके हैं, अगर वो भी काम करना चाहते हैं तो उनको 15,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष, जेल में जाने के बाद कोई जॉब नहीं देता अध्यक्ष। किसी के पास जाइए, अरे ये कैदी क्या जॉब देंगे कहते थे, मगर हमारा डिपार्टमेंट में उन लोगों को रोजगार पैदा करने की कोशिश की अध्यक्ष। जो जाकर अपना हुनर सीख कर काम करते हैं तो काम देते हैं, जो कहीं से किसी जॉब नहीं मिलता वो पलट कर आते हैं, तो फिर उन्हें पेट्रोल पंप पर नौकरी देते हैं, जिससे उन्हें हर माह 15,000 रुपये की आमदनी होती है अध्यक्ष। अध्यक्ष, फायर सर्विस डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है अध्यक्ष। हुकूमत ने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पहले कोई फायर स्टेशन मौजूद नहीं था, वहाँ 25 नए फायर स्टेशन मंजूर किए अध्यक्ष। तेलंगाना में जुमला फायर स्टेशनों की तादाद जितने असेंबली से अध्यक्ष, उसके बराबर 119 इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे अध्यक्ष। 2014 से पहले 93 फायर स्टेशन मौजूद थे अध्यक्ष। हो गया अध्यक्ष। फायर आउटपोस्ट 16 को फुल फ्लेज फायर स्टेशन में अपग्रेड किया बनाने की तजवीज़ अध्यक्ष। मुल्क भर में पहली मरतबा फायर स्टेशन में फायर मोटरसाइकिल को शुरू किया गया अध्यक्ष। इससे हादिसात बहुत कम हो रहे हैं अध्यक्ष। फायर मोटरसाइकिल इमीडिएट पहुंच जाती है अध्यक्ष, जिसकी वजह से उनके पास बॉल्स होते हैं, किस तरह आग को रोकना चाहिए वो इस्तेमाल करने की वजह से इमीडिएट आग फैलने का मौका नहीं रहा अध्यक्ष। इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने 7,72 लाख रुपीस सैंक्शन किए, जिसके लिए 131 मोटरसाइकिल खरीदी गई अध्यक्ष। अध्यक्ष, सैनिक वेलफेयर भी पुलिस डिपार्टमेंट के तहत आता है अध्यक्ष। उसके लिए भी हर जगह सैनिक भवन बनाया जा रहा है। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ अध्यक्ष, क्योंकि हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी भी कदर करने में कोई स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है अध्यक्ष। उन लोगों के लिए सीएम साहब ने खास तौर से डबल बेडरूम में भी 2% रिजर्वेशन दिया जा रहा है अध्यक्ष। वर्ल्ड वार के जो फौजी और बेवाओं को महाना 6,000 रुपये वजीफा दिया जाता, वो सारे हिंदुस्तान में नहीं, इस तेलंगाना स्टेट में दिया जाता अध्यक्ष। अध्यक्ष, जितने हमारे साबिका 10 डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, वहाँ सैनिक भवन बनाया गया अध्यक्ष। बहुत जगह इफ्तिताह भी हो चुका है, कुछ जगह इफ्तिताह भी होना है, और निजामाबाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है अध्यक्ष। अध्यक्ष, कमांड एंड कंट्रोल। अध्यक्ष, हिंदुस्तान आज़ाद होके 75 साल तो परसों मनाए अध्यक्ष। 75 साल में 50 लाख रुपए की अध्यक्ष। एसपी और आईपीएस ऑफिसर को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दिए जा रहे अध्यक्ष। साबिका में 30 मिलते थे, सीएम साहब ने उसे 1 करोड़ किया अध्यक्ष। ये मुल्क भर में सबसे बेहतरीन पैकेज है अध्यक्ष। अभी होमगार्ड्स का एक कट मोशन में भी सवाल था, मगर ये भी बता दे रहा हूँ अध्यक्ष, किसी स्टेट में होमगार्ड्स को इस तरह की सैलरी नहीं है अध्यक्ष। हमारे पास 18,491 होमगार्ड्स है अध्यक्ष। पहले उन लोगों की सैलरी तेलंगाना बनने से पहले 12,000 थी अध्यक्ष। सीएम साहब ने 12,000 से कितना बढ़ा अध्यक्ष? 8,250 रुपये इजाफा किया, 20,250 रुपये हर माह सैलरी मिल रही है। उसके अलावा हर साल 1,000 रुपये इंक्रीमेंट, जितने साल वो काम करेंगे, अगर 20 साल करेंगे तो 20 और 40,000 रुपये सैलरी हो जाएंगी अध्यक्ष। और उसके अलावा अगर वो होमगार्ड्स ट्रैफिक में काम करना चाहते हैं, ट्रैफिक में उनकी तब्दील जा चुके हैं या वो जाना चाहते हैं, अगर वहाँ ड्यूटी की ज़रूरत है, उनको भेजा गया, तो उन्हें भी 30% अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जा रहा है अध्यक्ष। और उनके लिए कांस्टेबल को, जिस तरह पुलिस कांस्टेबल को 7,500 रुपये बतौर यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है अध्यक्ष, वो होमगार्ड को भी दिया जा रहा है अध्यक्ष। उसके होमगार्ड्स में जो महिला भी है अध्यक्ष, उनको मैटरनिटी लीव 6 महीने की दिए जा रहे हैं अध्यक्ष। पुलिस हॉस्टल में इलाज और अद्वियात की फराहमी भी दी जा रही थी। पुलिस में भर्ती में इनको रिजर्वेशन कोटा भी रखा। अगर पुलिस में वो जाकर, क्योंकि होमगार्ड को ट्रेनिंग नहीं है अध्यक्ष, साबिका में वो आते थे जो भी रिकमेंडेशन से होते थे, क्योंकि उनका 9 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी है एक कांस्टेबल को, एसआई को। अगर वो काम करते हुए ट्रेनिंग में जाकर फिर से ट्रेनिंग देकर कांस्टेबल बनना चाहते तो वो भी उन्हें मौका दिया गया अध्यक्ष, ताकि उनका जॉब भी सिक्योर रहे और उनको प्रमोशन भी मिल सके फ्यूचर में।
हाँ? अब ये तो अलग ही चाहिए तो। हाँ करा देंगे, कहाँ नहीं बस बोलता हूँ मैं, आपका एक सवाल है मैं बताता हूँ उसका भी बता थोड़ा कट। पिछले 3 सालों से 5 लाख रुपयों का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी होमगार्ड को दिया जा रहा है साहब। जरूर इंशाल्लाह आप जो बता रहे हैं जरूर किया जाएगा। अध्यक्षा, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत बहुत से बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं अध्यक्षा। एसपी ऑफिसर्स बनाए जा रहे हैं, डीएसपी ऑफिस बनाए जा रहे हैं, और सीएम साहब ने इसके लिए काफ़ी बड़ी रकम मुहैया की अध्यक्षा। अब ये काफ़ी डिटेल है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसलिए आपको क्योंकि टाइम हो रहा बता रहे हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मगर कहीं पर भी हिंदुस्तान में जितने अच्छे स्टेशन बने हैं, जितने अच्छे डीएसपी ऑफिस बने हैं, जितने अच्छे एसपी ऑफिस बने हैं, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। सीएम साहब हमेशा ये कहते हैं एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। रिसेप्शन पे अगर कोई आता है तो पहले का ऐसा धंधा नहीं है अध्यक्षा। पहले लोग कोई भी छोटा मामला क्राइम होता तो वकीलों को ढूंढते पड़ते थे, 2-2, 3-3 घंटे तक कोई वकील मिलना, तो फिर एक कंप्लेन लिखना, तो पुलिस स्टेशन में जाना। पुलिस स्टेशन में जाना भी कोई ना कोई लोकल लीडर ज़रूर होना। हम 2001 से 14 तक मूवमेंट में थे, हम देखते थे हमारे घर के पास चादरघाट पुलिस स्टेशन था, बाहर 100 लोग ठहरे रहते थे। हम भी गाड़ी रोकते थे कि भाई चलो कौन है क्या किस्सा, तो बोले नहीं नहीं हमारे लीडर साहब, क्यों कंप्लेन देना है। तो आज तो ये हाल है, आप कंप्लेन देने गए तो आपको कुर्सी डाल के बिठा के चाय पिला के आपका कंप्लेन लिख के खुद पुलिस वाले दे रहे हैं अध्यक्षा। इतने अच्छी तरीके से उनकी सेवा की जा रही है अध्यक्षा। फ्रेंडली पुलिसिंग अध्यक्षा, फ्रेंडली पुलिसिंग तो बहुत मशहूर हो चुकी है अध्यक्षा। इसकी में हम सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 है अध्यक्षा। मैं देखता हूँ अध्यक्षा, मुझे मिलने आते हैं लोग, कोई यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, कई लोग आते हैं जो भी आए हैदराबाद घूमने आए, तो क्योंकि रोड पे मेरा ऑफिस है, वो दिखते होम मिनिस्टर तो मिल सकते क्या पूछते। जब मेरे से मिलते तो कहते भाई आपके स्टेट में जो सुकून है कहीं पर भी नहीं है। ख़ास बात यह है, हम कल एक दावत में गए थे, हमारे साथ एक औरत जो है मोटरसाइकिल पे बैठ के आधा किलो सोना पहन के मोटरसाइकिल पे चले आ रही। ऐसा कैसा होता, हमारे पास तो 7 बजे के बाद तो अंगूठी भी खींच लेते, इतना हमारे पास ऐसा हाल है। आपके पास इतना अच्छा लैंड ऑर्डर है, यकीनन काबिल तारीफ़ है। तो मैं अपनी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएम साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारी स्टेट में हो रहा है, जो स्टेट में हो रहा है हमारे अमन, उसकी बात कर रहा हूँ अध्यक्षा। लोग तारीफ करते हैं और बोलते हैं मुझे हम रिटायर्ड हो तो आपकी स्टेट में जाके अकोमोडेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है और हर बड़ा आदमी देख रहे हैं हैदराबाद आके शिफ्ट हो रहा है। यहाँ का लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तीसरा, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। हैदराबाद का पानी जिसको लग गया वो बाहर जाना ही नहीं चाहता। उसी तरह लोगों में एक किस्म की जुस्तजू आ चुकी है अध्यक्षा, वो यही चाहते हैं अध्यक्षा कि हैदराबाद जिस तरह तरक्की कर रही है, जिस तरह हमारे साहब का जो सपना था अध्यक्षा, वो सपना हमारी स्टेट पुलिस ने पूरा किया अध्यक्षा। और उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार, पूरे के पूरे हकदार हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अध्यक्षा। उन्होंने 1-2 दिन नहीं, घंटों महीनों डीजीपी के साथ बैठे रहते थे। लोग समझते थे कि क्या कर रहे हैं, हमेशा डिस्कस, हमारे नरेंद्र साहब यहाँ मौजूद है, वो भी साथ रहते थे, हमेशा डिस्कशन कैसा रेवोल्यूशन लाना चाहिए, कैसा लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करना चाहिए, कैसा हमारी स्टेट में पुलिस का एतमाद बहाल करना चाहिए। लोग पुलिस से बोले तो डरते थे अध्यक्ष। हम देखें पुराने बड़े, और आज भी देखते हैं लोगों को, हम क्योंकि फ़ोन करते हैं लोग, अरे पुलिस आ गई तो घरों के लोगों के औजार खता हो जाते हैं, वो समझते हैं पुलिस आकर क्या कर देगी। पर हमारी पुलिस जब एक बार ले जाती है फिर दूसरी बार छोड़ती है, उन्हें मौका देती है, तो जब उन पर एतमाद बहाल होता है। ये सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है अध्यक्षा। पुलिस स्टेशन में भी हमारे पास पंजागोटे का पुलिस स्टेशन जो अध्यक्षा बेहतरीन पुलिस स्टेशन है, जिसे अवार्ड मिला है अध्यक्षा। हिंदुस्तान में 87 बेहतरीन पुलिस स्टेशन है अध्यक्षा। उसमें हमारे पास समस्तान नारायणपुर का पुलिस स्टेशन है, नारायणपुर किधर है अध्यक्षा, वो भी टॉप क्लास का अध्यक्षा। बेंजेकी पुलिस स्टेशन, चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन, ये किया जा सकता है जो नंबर 1 तरीके के पुलिस स्टेशन अध्यक्षा। 2-3 बात है अध्यक्षा, दौरान में मुझसे कुछ सवाल किए गए थे तो मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं अध्यक्षा, क्योंकि हम सबसे पहले मैं डी श्रीधर बाबू साहब जो एमएलए मंथनी है, यकीनन आपको जितना दुख है मुझे भी उतना ही दुख है। आप तो कॉन्स्टेंसी किया तो यकीनन आपको ज़्यादा दुख हुआ। जो मर्डर हुआ है गुट्टू वामन राव साहब का और उनके मिसेस, हम कभी नहीं भूल सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यकीन दिलाता हूँ
कोई भी उसके पीछे हो आखिरी तल तक पहुंचेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो होती हमसे 100% दिलाएंगे। इसमें कोई हमारे एडवोकेट का मर्डर करना ये बड़ी बुरी बात है। आम आदमी का मर्डर करना खुद बुरा है। जो एडवोकेट होता है, जो कानून की हिफाजत करता है, आपके कानून से लड़ता है, तो आप भी कानून से लड़िए। आप हथियार इस्तेमाल करें। आपसे एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, आपने मुझसे कहा, मैं जब भी डीजीपी साहब को फ़ोन करके कहा कि साहब इसमें स्ट्रिक्टली जो लोग हैं इसके पीछे, आपको पता चला लोगों को, अभी पहले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था, अब एक आदमी को अरेस्ट किया गया, और हाई कोर्ट में भी इसकी रिपोर्ट एवरी वीक दाखिल की जा रही है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर इसकी चार्जशीट दाखिल की जाएगी और 3 महीने के अंदर ज़रूर इसको पनिशमेंट दिलवाया जाएगा, ताकि इन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट देंगे तो आगे क्राइम नहीं होगा। अगर हम क्राइम करने वालों के ऊपर ज़रा भी गिरफ्त कमज़ोर कर देंगे तो यकीनन हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। हम ज़रूर कहीं नहीं करेंगे। इस केस के अंदर तो बहुत सीरियस है सीएम साहब भी, और हम भी सीरियस है, डीजीपी साहब भी सीरियस है, पूरा पुलिस महकमा है। क्योंकि जितनी भी मेहनत करो आप, एक गलती की वजह से बदनाम हो जाते, वो गलती को हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उस जो कातिल को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे, और जो लायर का कातिल करना यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा एक जुर्म है। जुर्म तो पूरे कातिलों को है, मगर हमारे एक जो क्राइम, जो हमारे हिफाजत करते हैं, हमारे कानून की हिफाजत करते हैं, ऐसे कानूनदानों का कत्ल करना ये बहुत दुख की बात है। मैं ज़रूर इसके अंदर हमारे डीजीपी साहब से भी बार बार बात कर रहा हूँ, और जो भी ऑफिसर से मीटिंग ले रहा हूँ, जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी और केस को भी फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। इसके लिए मैं रघुनंदन राव साहब भी, क्योंकि हमारे राजा साहब यहीं पर है, तो बोले कि वो सवाल कर रहे थे हमारे साथी, बोला मुबारक आप 1 से 2 हो गए, एक दूसरे को संभाल ले सकते। तो ज़रूर इसके अंदर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, सख्त से सज़ा देंगे, जो भी इन्वॉल्व होगा उनको ज़रूर मंजिल तक पहुँचाएंगे। श्रीधर साहब जो है सूर्यापेट हादसे की बात करें, यकीनन बहुत दुख की बात है। स्पोर्ट्स खेलने वाले सब हमारे बच्चे होते हैं, और यह सूर्यापेट में कबड्डी का मैच हो रहा था। कबड्डी के मैच के अंदर जो गैलरी में मौजूद थे लोग, तकरीबन 3000 लोगों की गैलरी थी, लोग कितने वो तो पता नहीं चला। कुछ हादसाती तौर पर गैलरी टूट गई, जिसकी वजह से 37 लोग जो है जख्मी हुए। किसी की, वो अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले ने हम पर मेहरबानी की, क्योंकि बच्चे हमारे बच्चे, अगर किसी को कुछ हादसा हो जाता, सर पे लग जाता, किसी को मार लग जाता, कुछ उसके डेंजर होता उसके हेल्थ के लिए, तो बहुत दुख की बात है। पर पूरे लोग जो जख्मी हुए कोई सीरियस नहीं है। मैं खुद भी अभी बात कर रहा, डीजीपी साहब भी बात किए, और उस पर हम केस भी बुक करें। जो जख्मी अफराद को हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करवाने की बात की है, और वो 37 में मैं समझता हूँ 27 तक तो डिस्चार्ज भी कर दिए। जो भी लोग हैं कल परसों में डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जो इलाज है वो गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाएगा। मगर जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, जो इवेंट के लिए जिम्मेदार है, उनके ऊपर केस बुक किया जाएगा और इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी, और अगर गलती है तो ज़रूर उन्हें सज़ा दी जाएगी। हमारी बहन श्रीमती डी अनुसया मोहतरमा ने वीकली ऑफ एंड फूड की बात की। जो पुलिस कांस्टेबल्स है उनको वीकली ऑफ दी जाती नहीं दी जाती। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मगर वो इमरजेंसी के टाइम पे, जैसा किसी को संडे छुट्टी लेना है, किसी को मंडे लेना है, किसी को ट्यूसडे लेना है, मगर जब इमरजेंसी आ जाती है, कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो सब मिल के हाजिर हो जाते हैं, फिर दूसरे हफ्ते में उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ज़रूर उनको दिया जाता है। और फूड अलाउंस जो है, डीए एंड डाइट अलाउंस और टीए के अलावा फूड अरेंजमेंट, जब भी जहाँ ज़रूरत होती है बराबर फूड अरेंजमेंट किया जाता है, और उनका जो अलाउंस होता है वो भी ज़रूर दिया जाता है। श्री सुंदरा वेंकट राय वीरया साहब जो एमएलए सत्तापल्ली है, उन्होंने कहा कि डीएसएसपी के प्रमोशन हस्बे ज़रूरत किए जा रहे हैं, डेफिनेट किए जा रहे हैं, और आपको एक 15-10 दिन के अंदर पूरा पता चल जाएगा। पुलिस के अंदर प्रमोशन स्टार्ट हो चुके हैं, 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल तरीके से हो जाएगा। अलबत्ता पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन, उनका प्रमोशन वो कोर्ट में जाकर वो लोग ही आपस में ग्रुपबाजी करके कोर्ट गए, जैसा कोर्ट से फैसला हो जाएगा ज़रूर उनका परमिशन भी ज़रूर दिया जाएगा। हमारे जाफर हुसैन साहब बहुत से बातें बताएं, पुलिस चालान करती है, तो मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों से, एमएलए साहब जितने भी साहिबीन हैं, पब्लिक में अवेयरनेस बिल्टअप कीजिए। पुलिस, हमारी हुकूमत को वो पैसों की ज़रूरत नहीं जो चालान से आते हैं। अगर पब्लिक को हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे,
रोज मेरे पास आते हैं लोग शिकायत करके, साहब चालान कर दिया। क्यों करे भाई? नहीं, बच्चे को स्कूल छोड़ने गया साहब, ये गली से मार के वो गली में से जाके आ गया। वो कैमरा है तो मुझे क्या मालूम, अब वो कैमरे हटा लो। तो भाई अगर कैमरे हटा लेंगे तो आप लोगों में अवेयरनेस कैसा आएगा? एक हेलमेट से जान बच सकती है, एक हेलमेट ना होने से जान जा सकती है आपकी। कई लोग मेरे रिश्तेदारों को देखा हूँ मैं, नौजवान बच्चे हेलमेट यूज़ ना करने की वजह से एक्सीडेंट पे सर पर मार लगने से उनकी डेथ हो गई। तो ये आवाम की भलाई के लिए चालान किया जा रहा है, ना कि कोई कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए चालान किया जा रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि फिर भी हम जितना हो सके, अगर कोरोना के अंदर मैं 2-3 बार बात किया हूँ, डीजीपी साहब से बात किया हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का फिर एक लहर आ रही है। हम कुछ भी ऐलान करेंगे तो लोग फिर से जो है फिर से लापरवाही शुरू कर देंगे। अगर पूरा कोरोना 10 दिन ख़त्म हो जाएगा, कोरोना पीरियड के अंदर चूँकि बहुत भयानक पीरियड था, बहुत से लोग अपने माँ बाप को बचाने के लिए, उनको ग़िज़ा देने के लिए हर तरीके से खिलाफ वर्जी किए। उसका हमें भी यकीनन वो ज़रूरी भी था। अगर किसी की माँ भूखी है तो क्या भूखी छोड़ देगा? चालान ज़रूर चालान होने दो, पहले माँ को तो जो भी राशन ले जाकर पहुँचाना ज़रूरी है उसको। हमारे हिंदुस्तान का रिश्ता है बाप बेटे, माँ बाप और पड़ोसी पड़ोसी का, ये किसी जात पात का नहीं है। जो बड़ों की खिदमत करना नौजवानों का फ़र्ज़ है। अगर वो फ़र्ज़ से कोताही करने की बात तो हम कभी नहीं कहेंगे, कितना भी आप खिलाफ वर्जी करें, मगर किसी की मदद करने के लिए करें तो हम बैठकर आगे जाकर ये कोरोना जब मुकम्मल ख़त्म होगा, वो ज़माने में जो भी चालाना थे उसको एक बार बैठकर गौर किया जाएगा। इंशाल्लाह लोगों को जब तकलीफ़ ना हो उस तरह का अमल इख्तियार किया जाएगा और सीएम साहब को भी इस बारे में मुकम्मल बताया जाएगा। और तीसरी बात बताए कि हैदराबाद में मर्डर्स हो रहे हैं। ये मर्डर्स की खामखा एक लहर जब बता रहे हैं, मर्डर कैसा हो रहा है आपको बताता हूँ। अभी एक बताया मलकपेट का, अभी मैं डीजीपी साहब से पूरी रिपोर्ट लिया। देखिए पुलिस वाला हर घर में तो नहीं जा सकता ना, दोनों जो है साले भोने हैं, माइंडी क्या भोने, मरने वाला भी साला है, दोनों भी डबल रिश्ते, दोनों के इनकी बहन उनको दिए, उनकी बहन इनको दे दिए, घर में जाके लड़ लिए। ये हुआ क्या कोरोना में, मैं बताता हूँ 2-4 बात मेरे जहन में जो आ रहा है, लोग मुझसे बता रहे हैं। फाइनेंशियल बहुत तंगी हो गई थी, लोग कर्जे ले लिए घरों में भी, जिसके पास भी, ये फ़कीरान भी पैसे वाले रहते हैं आपको मालूम, वो कर्जे ले लिए। उसके बाद वो लोगों ने 10%, 8% इंटरेस्ट लगा दिए। अब इतने पैसे दो, अब पैसे कहाँ दे सकते? एक वाक़या अभी कुछ दिन पहले या पिलर नंबर पे हुआ था कुछ 137 पे, उसके बाद जो आदमी मरा और मारने वाले का स्टेटमेंट में टीवी में सुना, उन्होंने बोला साहब मैं इसे कोरोना में कर्जा लिया था, 2 लाख रुपए कर्जा लिया था और इन 15% से दिया मुझे, अब 30,000 रुपये मैं भर नहीं सका, होटल चली नहीं, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के जो है मेरे बेहिसाब परेशान करते रहा था, आखिर में तंग होकर उसको मार दिया। तो बाज़ वक़्त मजबूरी में भी ऐसा हो रहा, हम उसकी ज़रूर उसके लिए हम सीएम साहब से गुजारिश करेंगे। ये कोरोना इफेक्टेड लोगों को किस तरह फिर एक अच्छी नई ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर हुकूमत की कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आप तमाम एमएलए जो भी बैठ सकते हैं, अपोजिशन लीडर्स से बैठेंगे, सीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि इसका कुछ हल निकालिए कि इसके पैसों की वजह से, लेन देन से, तो ये जो है जो भीख मांगने वाले साहब का मर्डर होगा और जो है उनका नाम जो है मोहसिन, और जो मरने वाले साहब है फ़कीर, हाँ, जिसका कत्ल किया गया वो हबीब साहब। हबीब साहब भिखारी है, अपने बोने साहब को कर्जा दे दिया इंटरेस्ट से, अब घर में लड़ लेके मर्डर कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा और एक सवाल करे थे कि बिदर में कत्ल हुआ, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हमारे एमएलए भी जब सुनेंगे डेफिनेट, ये तो पुलिस की कारकर्दगी भी है ना साहब। लोग नहीं है ये बिदर से आके यहाँ टैक्सी किराए से लिए, जब बिदर से आकर वो लोग टैक्सी किराए से लिए, टैक्सी का ओनर पुलिस में कंप्लेन दिया 5 मार्च को कि 5 दिन से मेरी टैक्सी गायब है। कोई कंप्लेन नहीं आया, टैक्सी ओनर का कंप्लेन आया और मेरा ड्राइवर भी लापता है। जब पुलिस वालों ने, नामपल्ली वालों ने सर्च किया तो किसी का पता नहीं है, किसी का नाम नहीं है उसके अंदर, कौन लग गया क्या लग गया। तो आखिर में पूरे कैमरे चेक किए गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कैमरे क्या काम कर रहे हैं। कैमरे चेक किए गए तो ऐसा दिखा एक कैमरे में कुछ लोग, वो टैक्सी नंबर तो था गाड़ी का, उसमें 2 लोग आके बैठ रहे हैं। तो कैसा आ रहे हैं वो लोग, ऑटो से आए। कंक्लूड करिए मिनिस्टर साहब, कंक्लूड करिए, घंटा होगा। अध्यक्ष पुलिस के डिपार्टमेंट की कारकर्दगी तो बताना पड़ेगा ना अध्यक्ष। लोग बुराई तो बताते, अच्छाई क्या कर रहे हैं वो भी तो बताना जरूरी है असेंबली में। तो एक आदमी जो शिव कुमार है, वो जो है दिल्ली से आया है और साथ में उसके खातून दोस्त ला लिया इम्तियाज़ खानम, उसका ताल्लुक बिदर से, और एक रवि आदमी रास्ते में मिलके उसमें बैठ गया
तो पुलिस वाले कैसा पकड़े वो बताता हूँ। जब वो कैमरे में देखिए टैक्सी के अंदर 2 लोग बैठ रहे हैं, तो किस ऑटो में से उतरे, वो ऑटो की फोटोग्राफी ली गई, वो ऑटो को कवर किया गया। वो ऑटो वो अपने मौजमजाई मार्केट तक, गोशा महल तक जाके ऑटो वहीं रोड से वो लोग बैठे। तो नियरेस्ट जो लॉज थी ना अध्यक्षा, वो लॉज में जाकर दरियाफ्त किए कि कौन कौन ठहरे क्या है। वो लोग रोड पे से बैठे, आप बताइए, वो बताना चाह रहा हूँ। वो लोग लॉज में ऑटो नहीं आया, रोड से बैठे। मैं रोड के नज़दीक जो लॉज है, पूरे लॉजों की तहकीक की गई। तो एक लॉज में पता चला कि यहाँ पर 2 लोग आगे ठहरे थे और हमारे पास से चले गए। उनका आधार कार्ड ये वो लिया गया, उसके बाद उनको पकड़ा गया। तो ये पुलिस अपने तरफ से CCTV कैमरे की वजह से कोई मर्डर करने वाले वो बिदर की है, लड़की भी बिदर की है, लड़का भी बिदर का, एक दिल्ली का है। ये व्हाट्सएप पे दोस्ती कर लेकर हैदराबाद में आके यहाँ से टैक्सी लेके जाएंगे और टैक्सी ले आके औरत उतर गई बिदर के पास जो कहेंगे बाजू के एरिया में, ये लोग उसे फांसी डाल के मार दी। वो लाश ले आके कचरे में डाल दिया गया। तो पुलिस की तरफ से लाश भी मुहैया की गई और गाड़ी जो जिस जगह बेची गई, तो वो हैदराबाद का कोई आदमी नहीं था उसमें। क्राइम करने वाले अदर स्टेट से आकर यहाँ क्राइम कर रहे हैं। पर काबिल तारीफ हमारी पुलिस की है कि ऐसे क्राइमों को भी बगैर किसी की निशानदेही के उसे पकड़ना बहुत बड़ी बात है अध्यक्षा। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से ये कहता हूँ कि पुलिस जो काम कर रही है हमारी तेलंगाना की, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल करिए। और जो बेचारा मकतूल है, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो बेचारा असलम है, उसको 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के अध्यक्षा। तो मैं भी बहुत दुख है, पर अब हम क्या कर सकते हैं बताइए कि पुलिस तो हर आदमी के साथ 2-2 पुलिस वाले तो नहीं है कि भाई आदमी जहाँ भी चल रहा है उसके जाने के लिए। मगर CCTV कैमरे की वजह से हम क्राइम को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं और ज़रूर उसके ज़रिए हम जहाँ तक हो सके क्राइम को कंट्रोल करेंगे। I request Sri Dudula Sridhar Babu Garu and other honorable members to kindly withdraw the cut motion in view of the reply given by me and pass the demand number 10, Home Department. Thank you. Anybody wants to clarification? No? Very good boys. Very good boys. First day discussion on demands for grants for 2021-2022 is over. Now voting of demands for grants. The question is that the cut motion numbers 1 to 74 are before the House. Those who are for the cut motions, please say A. Those who are against, please say no. Noes have it, noes have it. The cut motions are last. I shall now put the demands for grants for voting. The question is that the government be granted a sum not exceeding rupees 2,352 crores 52 lakhs 23,000 under demand number 5, revenue, registration and relief. That the government be granted a sum not exceeding rupees 249 crores 3 lakhs 82,000 under demand number 7, commercial taxes administration. That the government be granted a sum not exceeding rupees 8,749 crores 38 lakhs under demand number 18, weaker section housing program. That the government be granted a sum not exceeding rupees 19,313 crores 11 lakhs 10,000 under demand number 21, social welfare. That the government be granted a sum not exceeding rupees 1,606 crores 39 lakhs 46,000 under demand number 24, minority welfare. That the government be granted a sum not exceeding rupees 11,516 crores 21 lakhs 48,000 under demand number 22, tribal welfare. That the government be granted a sum not exceeding rupees 1,632 crores 69 lakhs 45,000 under demand number 25, women, child and disabled welfare.
that the government be granted a sum not exceeding rupees 5,522 crores 10 lakhs 7,000 under demand number 23 backward class welfare, that the government be granted a sum not exceeding rupees 1,508 crores 88 lakhs 7,000 under demand number 38 civil supply administration, that the government be granted a sum not exceeding rupees 284 crores 52 lakhs 46,000 under demand number 6 excise administration, that the government be granted a sum not exceeding rupees 115 crores 95 lakhs 12,000 under demand number 8 transport administration, that the government be granted a sum not exceeding rupees 6,465 crores 43 lakhs 47,000 under demand number 10 home administration, that the government be granted a sum not exceeding rupees 18,936 crores 5 lakhs 7,000 under demand number 27 agriculture, that the government be granted a sum not exceeding rupees 99 crores 69 lakhs